evening to one and all. Speaker of today's session, CA Premlata Daga, senior member of the profession, and my dear friends. I, CA Gaurav Maheshwari, welcome you all in the first ever virtual CP program of Indore branch of CISC of ICI on the topic of identify unusual entries in planning. We are honored to have the presence of CA Premlata Daga from Nagpur as today's speaker. Welcome you, ma'am. Thank you. Now I request CA Harsh Firoza, chairman of Indore branch, to deliver his welcome speech. Harsh bhai. Thank you, Gaurav. I am audible? Yes, sir. Yeah. Thank you. First of all, I want to congratulate all of you that our CPE directed allow branches to organize structured CPE hours in a COVID time period. We must utilize this time to avail full CPE structured learning up to 10 hours, which is virtually allowed. This is our first paid CPE seminar. So if any technical issues arise, please bear with us, as I am also in a remote location sitting at client place and my webcam is not allowing me to on. So my audio is only audible. I welcome today's speaker from Nagpur, CA Premlata Daga ji, having immense knowledge in this field. Also, I would like to congratulate that during lockdown, officials considered our services as importance and allow us to open offices from 11 AM to 4 PM. Please follow rules and guidelines and work carefully. Thank you very much. Over to you, Gaurav. Thank you, Harsh bhai. So before handing over the session to our today's speaker, let me introduce her to all of you. Premlata Daga is a chartered accountant by profession and an educator by passion. She qualified as a chartered accountant in the year of 2012 at a young age of 22. Am I correct, ma'am? Yes, sir. Yes. She is also a member of ICSI and holds diploma in DSA. She started her career as an educator at a young age of 23 with National Academy of Direct Taxes. She is one of the youngest visiting faculty at National Academy of Direct Taxes and so far has taught financial accounting to 7 batches of IRS officers. She has conducted 500 plus sessions on financial investigation through Tally at National Academy of Direct Taxes and Direct Tax Regional Training Institutes, Bhopal, Chandigarh, Bangalore, and Baroda, for officers from Assistant Commissioner to Joint Commissioner level. She has a rich industry experience with specialization in internal control system and business management consultancy. She had been nominated as one of the youngest nominated member on the board of the state company in education sector. So with this small introduction, I hand it over to Premlata ji for the technical session. Please, ma'am. Thank you so much, sir. And special thanks to the committee for having me at such a short notice and arrangement. I'm so happy that I'm the first speaker for your virtual CP program. Today we are going to talk on Tally, and Tally had always been a very, very interesting topic. And the reason is, firstly, it is one of the wildest, having one of the most wide use in the small and medium-sized organization. Every chartered accountant ने Tally के साथ काम किया है. Tally की खासियत ये है, और ये एक कारण भी है कि ये वाइडली यूज्ड है, एंड हम इस पे इतनी बार बात करते हैं फिर भी इस पे बहुत कुछ बात करने के लिए रह जाता है, कि ये कारण ये है कि टैली बनाने वाला कोई आईटी प्रोफेशनल नहीं था. टैली एक सॉफ्टवेयर जो बनाया गया था वो एक बिजनेसमैन द्वारा बनाया गया था, और वो भी एक मारवाड़ी बिजनेसमैन द्वारा. ये बताने का कारण ये है कि अगर कोई आईटी प्रोफेशनल एक सॉफ्टवेयर बनाए तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बहुत सारी चीजें कंट्रोल्स डाल देता है. लेकिन आईटी प्रोफेशनल को बिजनेस करना नहीं आता, वो बिजनेसमैन नहीं है, एंड ही डजंट नो द पेन्स ऑफ अ बिजनेसमैन व्हिच अ बिजनेसमैन ओनली कैन अंडरस्टैंड. तो जो टैली बनाए हैं उनका नाम है मिस्टर श्याम सुंदर गोयनका. उनका खुद का एक टेक्सटाइल का बिजनेस था,
और उन्होंने अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जो उनके एडजस्टमेंट्स हुआ करते थे या जो स्टॉक रिलेटेड उनकी क्वेरीज हुआ करती थी, जिसके लिए उन्हें कोई ऐसा सॉफ्टवेयर मार्केट में नहीं मिला, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट्स को पूरी करने के लिए इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बनाया। उनके बेटे श्री भरत गोयनका जी ने, जो कि एक मैथ्स ग्रेजुएट है, ही डेवलप्ड दिस सॉफ्टवेयर. And the beauty of the software is all those things which are technically not feasible, I mean, which should not exist, but it practically do have a lot of relevance in the business world, is Tally is having a provision to accommodate it. To give a quick example, like negative cash. We all know that practically a cash can never go negative, but we know that when it comes to business transactions, a cash balance do in books of accounts go negative. Reason being, we end up depositing or using the unaccounted cash. अब ये अगर कोई आईटी प्रोफेशनल बनाता तो उसे रोक देता, लेकिन ये क्योंकि एक बिजनेसमैन ने बनाया है, इसी वजह से टैली के अंदर कैश नेगेटिव जाने का प्रोविजन है, इन्वेंट्री नेगेटिव जाने का प्रोविजन है, इन्वेंट्री रिलेटेड इतने सारे एडजस्टमेंट्स होने का प्रोविजन है कि एवरी डे वी ऑल्सो आफ्टर 8 years of practice come across so many hidden features of Tally. Today in this session, we will first concentrate on manufacturing industries. Reason being, inventory is one of the most important item for audit, for data analysis. And when I teach to income tax officers also, they always come up with queries which relates to inventory. Today in this session, most of the time we are going to talk on inventory. And then we will move ahead with some additional features which you probably may not be knowing or may have come across, but in this tax audit season, it's going to save a lot of your time. A common problem jo hoti hai whenever we sit and do data analysis is, first thing, you yourself need to know what we want to see. And second thing, you must know the right tool that helps you to find that thing. सबसे बड़ी दिक्कत बहुत सारे लोग करते हैं, I mean, whomsoever I have come across with, कि उन्हें क्या चाहिए पहले ये नहीं पता होता. सेकंड, अगर ये पता चल जाए तो कौन सी रिपोर्ट उनको ये चीज दे पाएगी. There are various reports and every single report in Tally is unique. You need to know the right report, otherwise you end up wasting a lot of your productive time and probably you may end up with a wrong result as. First, we will talk on manufacturing entities. Manufacturing is something extremely important because their accounting comes with some adjustments, and Tally has a lot of functionalities which relates to a manufacturing concern. So instead of making it just a discussion type of thing, I would like to show you with the help of practical hands-on example. First step, what we are going to do is we will be talking about how the manufacturing related transactions must be recorded in Tally. सबसे पहले हम देखेंगे सही तरीका क्या है with a very small example so that we understand the functions of Tally. Then we will move ahead step by step, then what type of adjustments, errors can be done in this accounting treatment and how as an auditor we can check the same. So let's move on to Tally now. So screen is visible. I hope the screen is visible. This is a very small example just to explain how the accounting should be done, the correct way of accounting. अभी Excel sheet visibility दिख रहा है. एक Excel sheet open है आपके. Yes, Excel sheet open है, that is fine. Yeah. Okay, so this is a small example. First, I'll explain in Excel sheet so that we know what should be the right answer. And then we will move ahead with Tally so that later on we understand whether our Tally entries are correct or not. In this example, we have raw material purchased. This is 1 lakh kgs at the rate of 100 and total value of purchases is 1 crore rupees. ये एक स्पाइसेस इंडस्ट्री का एग्जांपल है जिसमें रॉ मटेरियल ऑफ चिलीज को हम कन्वर्ट करेंगे चिली पाउडर में. बहुत सिंपल सा काम है. हमारे पास 1 लाख किलो मिर्ची है और वो 1 लाख किलो मिर्ची से हमें मिर्ची पाउडर बनाना है.
टोटल मिर्ची पाउडर जो इस पीरियड में बना है वो है 75,000 kgs. 75,000 kgs is my finished product. इनपुट आउटपुट रेशियो होता है हर इंडस्ट्री का. इसमें सिंप्लिसिटी के लिए हमने मान के चला है कि इनपुट आउटपुट रेशियो इज 80%. दैट मीन्स 100 kg का फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे 125 kg का रॉ मटेरियल चाहिए. दिस इज माय रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स. अगर मुझे 75,000 kgs का फिनिश प्रोडक्ट चाहिए तो इतनी वैल्यू का मटेरियल कंज्यूम हो गया विद दिस इनपुट आउटपुट रेशियो ऑफ 80%. एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ माय रॉ मटेरियल. This is the value of my raw material that should be there after passing this entry. After this, we have some more details. ये रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए वी नीड सम लेबर चार्जेस ऑफ 5 लाख रुपीज, सम इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऑफ 2 lakh rupees. So my total cost of manufacturing process is 1,75,000. इतने रुपए खर्चा करने के बाद I will get 75,000 kgs of my final product of chili powder. तो अगर इसे डिवाइड करते हैं तो मेरा फिनिश्ड प्रोडक्ट का जो रेट आना चाहिए टैली में वो होगा 134 rupees and 33 पैसा. अगर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए दैट मीन्स my selling price should be 161.2 rupees. We have assumed that we have sold 60,000 kgs of my goods manufactured. इसका मतलब ये मेरी सेल वैल्यू होगी. एंड जो बच गया क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स वो इतने प्राइस पे आना चाहिए. दैट इज 15,000 kgs at the rate of 134.33. ये अगर सब कुछ सही हुआ तो मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो रहना चाहिए 16,12,000 rupees. This is a small example that we are going to replicate in Tally to understand the accounting entries. Let's now see this. To save time, I have already passed the expenses entries. We will concentrate on inventory related transactions and inventory related settings. So 7 lakh rupees direct expenses I have already recorded here. 2 lakh rupees in the form of labor charges and 5 lakh rupees in the form of electricity charges. Now let's pass the purchase entry. There is no difference in passing the purchase entry of your raw material, that is your raw chilies, and passing the purchase entry. Item I need to create. Raw chilies. It is in spices category and kgs is the unit. We have purchased 1 lakh kgs at the rate of 100. That means it's a total raw material purchase of 1 crore rupees chilies. For simplicity, I am taking cash even though it is getting negative. Tally will allow that negative cash. Enter. So we are done with the purchase entry. Now comes the important part. Converting this raw chilies into your finished goods of chili powder. इसे करने के दो फेमस तरीके हैं. एक जो सबसे कॉमन तरीका है वो होता है इन्वेंट्री वाउचर्स में जाके एक स्टॉक ट्रांसफर एंट्री पास करना, जो कि काफी सारे लोग इस तरीके से इस एंट्री को पास करते हैं. बट प्रैक्टिकली ये सही तरीका नहीं है. टैली में अगर आप कंटिन्यूसली सेम कॉम्पोजिशन का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आपको उसका बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट करना चाहिए. बिल ऑफ मटेरियल इज नथिंग बट अ लिस्ट ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल एंड द डायरेक्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश्ड गुड्स दैट वी आर गोइंग टू सेट इन टैली. This composition will be used for every accounting entry that we passed for converting a raw material into finished goods. इसको पास कैसे करते हैं? पहले हमें हमारा इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करना पड़ेगा.
इन्वेंट्री आइटम क्रिएट करने के लिए वी विल गो टू मास्टर्स, स्टॉक आइटम, क्रिएट. यहां जाके वी आर क्रिएटिंग chili powder. This is my final product. Now, normally this is the screen that we see in Tally, but in order to have the bill of material, we need to go for configuration that is available on the right hand side. Press F12 and go for this last option, enable bill of material. Yes. The moment I get here, there is an additional field, a bill of material. I have to turn this to yes. The moment I do so, I'll have a dialog box where I need to give the details. This name of bill of material is chili powder. Now this is very important box because in this dialog box, we are going to put what is the relation between the raw material and the finished goods. This is showing me here a field which is asking unit of manufacture. Unit of manufacture का मतलब होता है कि आप जो यहाँ पे डिटेल देने वाले हैं वो कितने केजीज के लिए या कितने यूनिट्स के लिए देने वाले हैं. आप इसे कोई भी रेट में बना सकते हैं. आप 1000 केजीज के लिए बना सकते हैं, 1 केजी के लिए बना सकते हैं या 100 केजीज के लिए भी बना सकते हैं. Whatever ratio you set here, this ratio will hold good for each and every transaction that we enter for this particular finished goods. हमने ऑलरेडी एक्सेल में कैलकुलेट कर लिया था कि इसका रेशियो हमने 80% लिया है. दैट मीन्स इफ आई एम गेटिंग 100 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स, देन माय रॉ चिलीज, जैसे ही आप कर्सर नीचे लाएंगे ये आइटम की लिस्ट एक्टिवेट हो जाएगी और आपके जितने भी मटेरियल आपको इसमें डालने हैं, यू कैन वन ऑन वन कीप ऑन एडिंग. इन ऑर्डर टू कीप द एग्जाम्पल सिंपल, वी आर हैविंग ओनली वन आइटम. If you are even having 10 items which are going to constitute your bill of material, you can keep on adding it in the desired ratio in this particular dialog box. So we have raw chilies here, main go down. अब जो यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है, ये क्वांटिटी पूछ रहा है कि 100 किलो बनाने के लिए यहाँ कितने किलो की रॉ चिलीज लगेगी. 100 किलो का चिली पाउडर के लिए हमें 125 किलो 125 kgs of raw chilies is required. Since I don't have any other additional item, I'm going to end the list. Enter. Rate of duty you can put it. We are ignoring for the time being. And accept. ये पहला काम हुआ. सबसे पहले हमने हमारा फिनिश प्रोडक्ट का आइटम क्रिएट किया और उस फिनिश प्रोडक्ट के आइटम में हमने बिल ऑफ मटेरियल क्रिएट किया. अब काम कंप्लीट नहीं हुआ है. The second step in the manufacturing entry is to create the manufacturing voucher type. आपका ये जो master information में accounts info है, just go here, go to voucher type. Here you get an option to create. The moment you enter this, you will have this dialog box. I'm creating manufacturing entry. ये by default voucher type आपके पास नहीं है, आपको create करना पड़ेगा. इसमें आपको select करना पड़ेगा कि आपका ये वाउचर टाइप ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट वाउचर टाइप्स में से किस कैटेगरी में आता है. सो ये जो वाउचर टाइप है ये स्टॉक जर्नल की कैटेगरी में आता है. ये इसका एब्रिविएशन है. इफ यू विश यू कैन चेंज और यू कैन लीव इट. द लास्ट थिंग इज इंपॉर्टेंट, यूज एज अ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल. दिस इज प्रेजेंटली नो, यू हैव टू टर्न दिस टू यस. वी आर डन. So the second step after creating the finished good bill of material is to create a voucher type. You need not create this voucher type for each and every finished product. You can certainly use this. If for any internal control purpose you want it, you can definitely create as many voucher types as you want. So we are done with the basic entries. Now coming to the accounting transaction. Sorry, inventory vouchers. अब हम एक ऐसी एंट्री पास करेंगे जिसमें हम इस रॉ चिलीज को कन्वर्ट करने वाले हैं फिनिश्ड प्रोडक्ट में. सो दिस एंट्री कैन बी पास्ड यूजिंग इन्वेंटरी वाउचर्स. आई एंटर हियर. दिस इज माय नॉर्मल वाउचर स्क्रीन दैट इज ऑफ स्टॉक जर्नल. I need to select the voucher that I created recently. That option you can select from the right hand side screen. यहाँ पे आपको ये स्टॉक जर्नल दिख रहा है. आप इसको अगर क्लिक करेंगे
तो आपके पास जो बनाई हुई वाउचर टाइप्स है वो आ जाएंगे. मैंने इसके पहले भी कुछ बनाए थे, दैट्स व्हाई यू कैन सी मल्टीपल वाउचर टाइप्स हियर. आई एम सिलेक्टिंग दिस दैट वी रिसेंटली क्रिएटेड. दिस इज selection of the voucher type that we have created for converting raw material into finished goods. ये काम हो गया. अब आपको यहाँ पे एंट्री जो पास करनी है, ये कौन सी एंट्री है? दिस इज एन इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन, बिकॉज इस एंट्री से ही आपका रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट होगा. माय प्रोडक्ट इज चिली पाउडर. यहाँ आपको वो प्रोडक्ट का नाम लिखना है जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं. तो हम जो भी बनाने वाले हैं वो चिली पाउडर है. मेन लोकेशन, इफ यू हैव मल्टीपल गोडाउन्स ऑब्वियसली यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर. क्वांटिटी, यहाँ जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है जो आपके फिनिश्ड गुड्स की है. तो हमारा जो एक्सेल में क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के हिसाब से वी आर क्रिएटिंग 75,000 kgs of chili powder. So I have to write 75,000 here. इस वाउचर में हमने क्या किया? इस वाउचर में हमने प्रोडक्ट डिफाइन किया, उसका लोकेशन डिफाइन किया एंड उसकी क्वांटिटी बताई. यहाँ जो क्वांटिटी लिखनी है वो क्वांटिटी फिनिश्ड गुड्स की क्वांटिटी है, रॉ गुड्स की नहीं. As soon as I press enter, my raw chili consumption as per this 75,000 kgs and the bill of material that I have already given will automatically get calculated and my value of consumed goods will come here. If you check it in Excel, हमारे Excel में value of consumed goods with this ratio is 93,75,000, and even when it comes to tally, it has automatically calculated it to be 93,75,000. We are done here. If you come on this side, if your product is having some byproducts or co-products, that details you can give here. Presently, we don't have, so we are going to skip it. Now, this area is important. This section has taken care of the material part, and this section will take care of the direct expenses that we need to allocate to this product. So presently, we are having two direct expenses. One is my labor charges, which is 5 lakhs. You have two options here. Either you can put it as a percentage of this figure, or if you don't have this relation, you can directly put the amount as well. Second is my electricity charges, which is 2 lakhs. So now just to sum up quickly, in this manufacturing entry, we have a chili powder, which is 75,000 kgs of finished product, for which we need 93,750 of raw chilies, which was procured at a rate of 100. My total cost is 93,75,000. I have some additional expenses to allocate to this product, which is labor charges of 5 lakh rupees and electricity charges of 2 lakh rupees. We are done with the accounting, inventory voucher. You can just quickly check here. My total cost is coming as 1,75 lakh and my per kg effective rate of finished goods is coming as 134 rupees and 33 paisa. If you check it in Excel also we have the same per unit cost of finished goods, that is 134.33. यानी अभी तक टैली में हमने जो भी किया वो सब सही चल रहा है. We are done with this entry, complete. Now let's see the impact of this transaction in my inventory reports. If I enter into stock summary, in this stock summary, we have chili powder, 75,000 kgs at the rate of 134.33. This is the value of my total finished goods. Raw chilies, that means the remaining stock after consumption is 6,250 kgs at the rate of 100, that is my purchase price, and the total value is coming as 6,25,000. So this is the stock. Now let's pass one more entry, and that is for my sale transaction. Sale transaction is my normal accounting voucher. I'll come here. Again, for simplicity, I will be passing this entry through cash. The product that I'm selling right now is my finished product, that is chili powder. Quantity sold is 600 kgs. And what was the rate that we decided? हमने ये बेचा था 161.2. 161.2 is my
selling price, which is after 20% of profit margin. Sorry, 60,000 kgs at the rate of 161.2. 96,72,000. This is 96,72. This is my total value of sales. The total value of sales. We are done with this entry. Over. हमने सेल की एंट्री पास कर दी, इन्वेंट्री कन्वर्जन की एंट्री पास कर दी, एक्सपेंसेस की एंट्री पास कर दी. अब अगर सब कुछ सही हुआ है तो पीएनएल का जो प्रॉफिट है वो 16,12,000 रुपीज आना चाहिए. लेट्स चेक इट इन पीएनएल. 16,11,999.95. I hope everybody will consider it to be 16,12,000. So this is due to rounding of differences, but yeah, this is 16,12,000 profit. This is the correct way of doing accounting for a manufacturing unit. ये तो सही तरीका है हमारे टैली में एंट्री करने का. अब इसमें हम डिफरेंट टाइप से अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से देखते हैं कि गलतियां क्या क्या होती है या जानबूझ के की जाती है. स्टार्टिंग विथ, अब हम चलते हैं फिर से वो अकाउंटिंग वाउचर में. आई रिपीट इट अगेन. अब जो हम करने जा रहे हैं वो सब गलत एंट्रीज है, सो दैट वी नो कि कहां कहां टैली में इंटरनल कंट्रोल्स है और कहां कहां वो इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है. और जहां जहां इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है वहां सारा काम हम लोगों का एज एन ऑडिटर बढ़ जाता है. अब अगर आपके असेसी ने कहने के लिए बिल ऑफ मटेरियल बना भी दिया, बट आपने यहाँ डाला ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आ गया, लेकिन I don't understand what was the need of giving this field as editable. I can anytime change this. मैंने यहाँ पे जो ऑटोमेटिकली कंजम्पशन का कॉस्ट यूनिट्स निकल गया था उसको अपनी मर्जी से चेंज करके 95,000 कर दिया एंड अब इसको मैंने क्लोज कर दिया. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट मेरे प्रॉफिट पे पड़ गया. ये 15,12,000 हो गया, जो थोड़ी देर पहले तक 16,12,000 था, यानी 1 लाख से कम हो गया. अब अगर हम एज एन ऑडिटर समझ लें कि यहाँ पे शायद ये बिल ऑफ मटेरियल सारी एंट्रीज ऑटोमेटिक लिया है एंड हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो शायद हम यहाँ पे गलत है. ये ऑटोमेटिक लेने के बाद भी एडिटेबल है, जिसका इम्पैक्ट हमारे अकाउंट्स पे पड़ता है. एक तरीका ये है. दूसरा तरीका इसमें गड़बड़ करने का, इसी एंट्री में if you see my labor charges and electricity charges, जो कि actual expenditure is of 7 lakhs, but अगर मैंने यहाँ allocate करते वक्त इसे 10 लाख कर दिया और electricity charges को 5 लाख कर दिया, तो इससे भी direct impact मेरी inventory cost पे पड़ेगा, but P&L पे इसका कोई impact नहीं आया. I mean to say my expenses of direct nature remain 7 lakhs, लेकिन allocation इसका ज्यादा हो गया. इस एलोकेशन का ज्यादा होने के कारण से मेरे स्टॉक पे इसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा. माय स्टॉक विल बी ओवर वैल्यूड. बट देयर इज नो कंट्रोल इन टैली कि अगर आप कोई कॉस्ट को किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट पे एलोकेट कर रहे हैं, देयर शुड बी एन अपर लिमिट कि एलोकेशन शुड नॉट एक्सीड द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन टैली. अब एक और तरीका, अगर इस एंट्री में हम ये डाले ही नहीं तो सीधा सीधा मेरा कॉस्ट ऑफ स्टॉक विल गो डाउन एंड इस वजह से मेरा जो डायरेक्ट कॉस्ट है विच शुड आइडियली फॉर्म पार्ट ऑफ माय इन्वेंट्री, वो पूरा का पूरा पीएनएल में चार्ज हो जाएगा. तो उस चक्कर में भी मेरा इस साल का प्रॉफिट कंपैरेटिवली कम हो जाएगा. इस तरीके से एक बिल ऑफ मटेरियल एंट्री को बहुत सारे तरीके से मैनिपुलेट करते हैं. ये तो भी बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीका है गड़बड़ करने का. इससे ज्यादा क्या गड़बड़ हो सकती है, टैली में जो नॉर्मल स्टॉक वाउचर है, अब अगर मेरा प्रॉफिट यहां पर आ रहा है 14,90,000 एंड अगर मैं यहाँ पे देखूं कि मेरी रॉ चिलीज जो अभी 5,000 केजीज है, 5 लाख रुपीज, अगर मुझे इसका स्टॉक कम करना है
लेकिन मुझे इसका स्टॉक का इम्पैक्ट दूसरी जगह नहीं डालना है, तो ये करना बहुत ज्यादा आसान है. I'll just go to my stock journal vouchers. I'll take from raw chilies 200 kgs at the 2000 kgs at the rate of 100. That is 2 lakh. और डेस्टिनेशन में अगर आपने कुछ नहीं डाला तो भी एंट्री कंप्लीट है. इसका मतलब ये हो गया कि एक तरफ डेबिट पार्ट इज देयर, आई मीन क्रेडिट पार्ट इज देयर, बट देयर इज नो डेस्टिनेशन फॉर दिस प्रोडक्ट. टैली में कोई इनबिल्ट रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस तरीके की स्टॉक जर्नल पास करने का, जहां पे सोर्स से तो आपने चीजें उठा ली लेकिन डेस्टिनेशन पे वो नहीं गई. इस एंट्री का इम्पैक्ट ये पड़ा कि अगर मैं अब मेरा स्टॉक जाके देखूं तो उसमें ये 2000 केजी से कम हो गया, लेकिन इसका सेकेंड इफेक्ट कहीं पे भी नहीं गया. अगर पीएनएल आप देखेंगे, इस एंट्री के वजह से आपका पीएनएल का प्रॉफिट कम हो. इसका सिंपल कारण है, आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. ये सारी जो स्टॉक जर्नल की एंट्रीज होती है, इट हैज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनिपुलेशंस एंड मिस्टेक्स, एरर्स. डेलिबरेटली क्या होगा, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट गलती से भी हो सकता है, बिकॉज अकाउंटेंट्स नॉलेज इज वेरी वेरी लिमिटेड. ये एक बहुत छोटा एग्जाम्पल था, इस वजह से हम इसे इतना क्लियर देख पाए. लेकिन यदि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है विद मल्टीपल प्रोडक्ट्स, विद मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ देयर बिल ऑफ मटेरियल, देन डूइंग दिस ऑडिट इज एक्चुअली अ चैलेंज. टैली के अंदर यू कैन सी ऑल द बिल ऑफ मटेरियल कॉम्बिनेशन इन अ रिपोर्ट कॉल्ड कॉस्ट एस्टिमेशन. अगर आप यहां जाते हैं तो आपको एक ही टाइप में, अगर आपके एंटिटी इस टाइप के हैं कि जहां मल्टीपल प्रोडक्ट्स डील हो रहे हैं, तो आप हर प्रोडक्ट का जो स्टैंडर्ड रेशियो है एक बार में इस रिपोर्ट से जा सकते हैं. ये रिपोर्ट आपको कहां मिलेगी, गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मेन्यू, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, उसमें इन आइटम एस्टिमेशन. आइटम एस्टिमेशन इज नथिंग बट योर बिल ऑफ एंट्री. योर बिल ऑफ मटेरियल की लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी. हमारे यहाँ एक ही प्रोडक्ट था, इसलिए यहाँ एक ही लिस्ट है. If you have multiple products, you will get all the list at one place. आप उस bill of material को basis बना के broad way में आप input output ratio का Excel में calculation करके, then we can anytime come back here and check whether our calculation is as per Excel, do tally with our tally figures as well. This is one of the way to check this. And moving ahead with some more possibilities of adjustments in tally, we have a certain list out here. We have discussed on the correct way. We have discussed on bill of material. We have discussed on direct expenses and their treatment, and again the missing controls in stock journal. Now comes the interesting part, that is stock considered as consumption. ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है एंड आई जस्ट केम अक्रॉस विद दिस एक्सीडेंटली. टैली में एक एंट्री का एडजस्टमेंट दिया है, उसको दिया तो शायद ठीक सोच के ही दिया होगा, लेकिन इसका यूज बहुत अलग अलग तरीके से होता है. कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि हम कुछ चीजों को परचेज करते हैं और हमें मालूम होता है कि वो कंज्यूम होने वाली है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई डेयरी प्रोडक्ट है, डेयरी इंडस्ट्री है, तो वो जो मिल्क परचेज करते हैं वो मिल्क को वो कंज्यूम करने वाले होंगे. अगर दे डोंट वांट टू सेल दैट मिल्क एंड जस्ट टू यूज इट फॉर मेकिंग कर्ड और पनीर और व्हाटएवर, तो उस केस में वो मिल्क को बाय डिफॉल्ट कंजम्पशन मान लेते हैं. तो टैली में एक ऐसा फीचर है जिसमें आप एक परचेज एंट्री को परचेसेस से डायरेक्टली कंजम्पशन में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. अगर ये मेरा पीएनएल है जहां पे 12,91,000 दैट इज 92,000 का प्रॉफिट दिख रहा है. अब अगर मुझे इसे 2 लाख रुपए से कम करना है, तो अगर मेरी एक और परचेज, अब इस एग्जांपल में हमने एक ही परचेज एंट्री ली थी 1 करोड़ की. अब मान के चलते हैं कि इसने एक और परचेज की है जिसका बिल भी है, जीएसटी लगा है एंड सब रिटर्न फाइल हुआ है, सब कुछ जगह पे है. तो हमारे पास एक बिल और है जो कि 2 लाख रुपए की रॉ चिलीज का है. अब उस बिल की जब मैंने एंट्री की, या वो अगर चिलीज थोड़ी अलग वैरायटी की है, तो आपके पास एक क्या पॉसिबिलिटी थी,
कि आप जब उस अकाउंट को क्रिएट करते हैं, आई एम क्रिएटिंग वन मोर आइटम हियर जस्ट टू शो यू हाउ डज कंजम्पशन वर्क्स. आई एम क्रिएटिंग वन मोर raw chilies. 2 indicates like this is the second variety. This is also to be valued in kgs. This is the raw material. अब टैली के अंदर एक सेटिंग है, इसको ऑप्शन आप एक्टिवेट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप एडवांस सेटिंग में चले जाएंगे. ये जो थर्ड ऑप्शन दिख रहा है अलाउ एडवांस एंट्रीज, इसको आप यस कर दीजिए. बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है. जैसे ही आप यस करेंगे ये एक और बॉक्स आपका खुल जाएगा. अपना कर्सर आप यहाँ लेके आइए एंड ट्रीट ऑल परचेसेस एज कंज्यूम्ड, इसको यस कर दीजिए. आई रिपीट अगेन, हम एक और प्रोडक्ट बना रहे हैं विच इज माई रॉ मटेरियल विच इज अ सेकेंड टाइप ऑफ रॉ चिलीज जो कि केवल 2 लाख रुपए की खरीदी गई थी. रॉ चिलीज 2 हमने इसको नाम दिया, इसे केजीज में वैल्यू कर रहे हैं और इसमें हमने एक एडिशनल सेटिंग की. ये एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन में, एडवांस सेटिंग में जाके इसे आप यस कर दीजिए जहां लिखा है ट्रीट ऑल परचेसेस एज कंज्यूम. इस आइटम को यस करने का मतलब ये होता है कि जितनी बार भी ये आइटम परचेज किया गया उसे परचेज करते से ही आप कंजम्पशन मान ले. इसका ही दूसरा मतलब ये होता है कि इस आइटम को क्लोजिंग स्टॉक में ले जाना नहीं है. तो अब अगर ये आइटम को मैंने परचेज किया और उसकी एंट्री पास की, नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री होगी, कोई फर्क नजर नहीं आएगा. इसका बिल भी होगा, पूरी वाउचिंग कर लेंगे आर्टिकल्स, फिर भी इसमें कोई डिफरेंस उन्हें नहीं मिलेगा. ये एक परचेज एंट्री है. नेम ऑफ आइटम इज रॉ चिलीज 2. क्वांटिटी हम काफी कम खरीद रहे हैं. आई एम परचेसिंग ओनली 2000 kgs एट द रेट 100, जो कि 2 लाख रुपए की गई. नॉर्मल एंट्री है, कुछ भी नहीं करना है, सिंपल परचेस है. इसका बिल भी रहेगा, इसका जीएसटी भी रहेगा, जीएसटीआर बी जो भी है उसमें भी दिखता रहेगा. लेकिन इसका पीएनएल पे इम्पैक्ट ये पड़ा कि इस परचेस एंट्री को पास करते ही प्रॉफिट 2 लाख रुपए से कम हो गए. डायरेक्टली एज यू एंटर दिस वाउचर, टेक्निकली हमने इस परचेसेस को ना ही बेचा है ना ही कंज्यूम किया है. So as per our basic accounting principle, this purchases should not impact my P&L because it is to be added to closing stock. But because of the additional settings in Tally, this purchases is by default treated as consumption without passing any additional entry in stock journal or through manufacturing voucher. Closing stock, if you enter, you will feel everything is normal. There is nothing here. I'll just show you how those by default setting looks. Normally ऐसा दिखेगा, यानी यहाँ पे आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस टाइप का कोई आइटम भी था. अगर मैंने इसे एक्सपैंड भी कर दिया तो यहाँ पे दिखता भी नहीं है. ये तो क्या 2 ही प्रोडक्ट है तो हमें मालूम है कि हमने कुछ ऐसा किया है. अगर 200 प्रोडक्ट होंगे तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू चेक. इस एंट्री को कैसे ढूंढते हैं? इस एंट्री से जो मेरा स्टॉक का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आई मीन वो स्टॉक में कंसिडर नहीं हुई, इस एंट्री को ढूंढने के लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन में जाके यहाँ एक ऑप्शन होता है शो ऑल आइटम्स इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस. अब मुझे ये बात नहीं समझ में आई, टैली की कहीं भी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है वहां पे इस तरीके की सेटिंग होती है कि ऐसी सारी चीजें खुद ब खुद नहीं नजर आती. यानी टैली के बाय डिफॉल्ट सेटिंग में दिस ऑप्शन इज नो. अगर आपको ये देखना है तो आपको पहले से यस करना पड़ेगा एंड उसके बाद आप इस आइटम को देख पाएंगे. ये जो थर्ड रो है ये अभी तक नहीं दिख रही थी क्योंकि वो जीरो वाले आइटम्स नो किए हुए थे. जीरो आइटम्स को यस करने के बाद यू कैन सी दिस एडिशनल लाइन हियर. इस रो में आपको एक अनयूजुअल चीज दिखेगी. यहाँ आपको दिख रहा है रेट, ये सब नॉर्मल है, लेकिन आउटवर्ड में आपको सिर्फ क्वांटिटी दिख रही है, रेट एंड वैल्यू नहीं दिख रही. ये जेन्युइन केस भी हो सकता है जहां पे ये छोटा मोटा आइटम है, जैसे कि इसमें अगर ऑयल गिर रहा है विच इज ओनली 1% ऑफ माई टोटल कंजम्पशन कॉस्ट, then okay we can safely ignore it. But if it is this type of accounting voucher, then we need to check in detail why this particular item is having no impact on the rate and value column of my outward section of inventory.
This was about item treated as consumption. ये वाला टैली डेटा हमने यूज किया है मैन्युफैक्चरिंग एंट्रीज को दिखाने के लिए। अब हम एक बड़े टैली डेटा पे जाते हैं जिसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे, क्योंकि वो बल्कि डेटा है। देयर आर अराउंड 5000 एंट्रीज इन दैट डेटा, so that we have a better understanding about things there. So we are again here into one different company. In this company, we are now going to see some additional things which will help us to understand what all unusual things can happen in Tally. और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है टैली में जो आपका काम काफी आसान कर देती है। क्योंकि हम स्टॉक पे भी बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा और डिटेल हम स्टॉक पे ही करेंगे। आपने इस अगर टैली डेटा को देखेंगे तो ये टैली डेटा बड़ा नॉर्मल सा दिखता है। I'll just change the here. ये एक बड़ा नॉर्मल सा टैली डेटा दिखेगा आपको। आप यहाँ क्लोजिंग स्टॉक पे जाएंगे, ऐसा लगेगा कंपनी बराबर सब कुछ मेंटेन कर रही है एंड थिंग्स आर ऑल फाइन। एंड ये क्लोजिंग स्टॉक है जो कि पूरी एंट्रीज करने के बाद यहाँ आ रहा है। हमने बहुत बार ये कोशिश की होगी वैल्यूएशन चेंज करने की, हम अलग अलग तरीके से करके देखते हैं। जैसे F7 है, हम FIFO में चले जाते हैं एंड उसको एवरेज कर देते हैं। ये सब नॉर्मल चीजें जो हम आज तक देखे हैं टैली के अंदर। लेकिन आप अगर यहाँ आप देखेंगे कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1,31 लाख है, ये उसकी लिस्ट है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा स्टॉक जो दिख रहा है वो स्टॉक है राइज रेगुलर का। इसकी वैल्यू 79 लाख है इन 1,31 लाख, सो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ इट। थोड़ा सा अगर सेटिंग चेंज कर दिए, यानी अगर मैं एक थोड़ा सा ट्रायल करूं, इन्वेंट्री इन्फो में जाते हैं, स्टॉक आइटम्स में ऑल्टर एंड आई एम गोइंग इनटू राइज रेगुलर। यहाँ पे जो एक कॉस्टिंग मेथड FIFO है, I have an option to change this to average cost. इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जब हम स्टॉक का वैल्यूएशन P&L में चेंज करते हैं तो वो वैल्यूएशन जो चेंज होता है वो बड़ा टेम्पररी सा होता है। आप सिर्फ इम्पैक्ट देख सकते हैं। अगर आपने एग्जिट स्कीम की और वापस अंदर आए तो वो इम्पैक्ट चला जाएगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे उसे चेंज कर दिया तो ये परमानेंटली चेंज हो जाएगा। इसे चेंज करने के पहले आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग। इस कंपनी का प्रॉफिट हम नोट कर लेते हैं। इस कंपनी का प्रॉफिट है 76.33 लाख एंड इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अराउंड है 131.28 1,31 लाख। अब अगर मैंने इस इन्वेंट्री का आइटम में जाके थोड़ा सा एक ट्रायल एंड एरर किया कि हम इसके मेथड को चेंज करके देखते हैं और इसे FIFO से हटा के एवरेज कॉस्ट कर देते हैं। I'm saving this. Now let's see the impact of this on my P&L. मेरे P&L में जो पहले प्रॉफिट था 76.33 लाख, it has now reduced to 71.34 लाख, approximately a difference of 5 लाख। जो स्टॉक पहले 131.28 करोड़ था वो चेंज होके 1.26 करोड़ हो गया। इस तरीके से टैली के अंदर आइटम वाइज स्टॉक वैल्यूएशन चेंज करने का भी ऑप्शन है। अगर हमें ऐसा लगता है कि कंपनी 100 प्रोडक्ट्स में डील करती है और सारे प्रोडक्ट एक ही मेथड पे वैल्यू कर रहे हैं तो शायद हमें गलत लगता है। टैली की इनबिल्ट सेटिंग्स अलाउज अस टू चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री आइटम वाइज। अब टैली के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट है। आई गो टू डिस्प्ले, statement of inventories, stock query. If you go to stock query and if you enter here, यहाँ पर आपको दिखता है ये प्रोडक्ट की पूरी डिटेल्स। ये जो प्रोडक्ट है इसका क्लोजिंग बैलेंस इतना केजीज है, इसका मेथड ऑफ वैल्यूएशन इतना है, ये इसके लास्ट परचेज एंट्रीज है, ये इसके लास्ट सेल्स एंट्रीज है, इतने इतने गोडाउन में ये इतना इतना केजीज रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स रिलेटेड डिटेल्स मिलेगी। ऑल दीज थिंग्स विल डिपेंड अपॉन कितनी इंफॉर्मेशन पंच हुई है। अगर आपको कोई भी आइटम का वैल्यूएशन चेक करना है तो आपको उस आइटम की स्टॉक क्वेरी में जाके एक बार में आप उसका पूरा स्नैपशॉट देख सकते
Stock queries help you to understand what are the ways how which the company, the important points regarding that particular stock item. स्टॉक क्वेरी के अलावा टैली के अंदर एक और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है विच इज अगेन रिलेटिंग टू स्टॉक. स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाके, सॉरी इन्वेंट्री बुक में जाके आप स्टॉक आइटम में जाएंगे, मूवमेंट एनालिसिस में, एंड यहां आप स्टॉक आइटम वाइज एनालिसिस कर सकते हैं. आई गेट इनटू स्टॉक आइटम एंड आई एम जस्ट गेटिंग इनटू rise regular. This is one of the most interesting report in Tally. अगर ये रिपोर्ट बाय डिफॉल्ट नहीं मिली तो इस रिपोर्ट को बनाने में हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है. इस रिपोर्ट में मिला क्या? ये रिपोर्ट ने हमें समरी दे दी इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हमने किस किस से खरीदा, कितना कितना खरीदा, क्या क्या रेट में खरीदा, इसका इफेक्टिव रेट कितना है. इफेक्टिव रेट मतलब अगर कोई एडिशनल कॉस्ट इसमें आपने इंकर किया है लाइक फ्रेट एंड कार्टिंग चार्जेस, तो उसका एवरेज आउट भी होता है. एंड कौन कौन इसके बायर है, यानी एक प्रोडक्ट की पूरी स्नैपशॉट समरी देखनी है, देन दिस इज द रिपोर्ट दैट इज गोइंग टू गिव यू. दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट इन टैली, इंटरेस्टिंग फ्रॉम ऑडिटर पर्सपेक्टिव एंड इवन फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर्सपेक्टिव. ये रिपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपको कोई पार्टी का प्राइस ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा कम है, देन इट इज अनयूजुअल. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें भैया जी किराना से आपने यही प्रोडक्ट 38.91 रेट में खरीदा और बाद में यही प्रोडक्ट आपने 55 रुपीज तक भी खरीदा. ऑब्वियसली वी नीड टू चेक द पीरियड एंड द डेट्स एंड द साइज ऑफ द ट्रांजैक्शन. ये एक किराना स्टोर है तो हो सकता है इसमें प्रोडक्ट में थोड़ा सा क्वालिटी का वेरिएशन हो, लेकिन अगर ये कोई और इंडस्ट्री हुई जहां पे प्रोडक्ट वेरिएशन ज्यादा नहीं है और अगर इतना ज्यादा प्राइस वेरिएशन मिलता है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस मे बी अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, दिस मे बी अ राउंड ट्रिपिंग, दिस मे बी डन फॉर आइदर रिड्यूसिंग माय प्रॉफिट और इंक्रीजिंग माय प्रॉफिट एज द केस मे बी. This report is very important and we must see this report for each and every major items that this particular entity is dealing into. इसमें भी स्टॉक जर्नल्स है. स्टॉक जर्नल्स को वैसे भी बहुत ज्यादा ध्यान से देखना चाहिए क्योंकि स्टॉक जर्नल में कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज निकाल के आप कहीं पे भी कोई भी रेट में डाल देते हैं, स्टिल देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट एनीवेयर इन योर फाइनेंशियल डेटा. We have already discussed on different valuation for different items. ये होना नहीं चाहिए लेकिन ऐसा होता है. ये allowed भी नहीं है as per our accounting standards, but since it is there, it becomes our duty as an auditor to check it. Stock query we have seen. Rate analysis through Tally. Recently the report that we have checked is the report that helps you to do a quick rate analysis. अगर ये रिपोर्ट ना हो तो आपको वो प्रोडक्ट में जाके उसको डिटेल करके उसको टैली से एक्सेल में एक्सपोर्ट करके फिर ये काम करना पड़ेगा, which becomes a little painful and time consuming efforts, time consuming work. Right now coming to stock aging. टैली के अंदर स्टॉक एजिंग की एक डायरेक्ट रिपोर्ट है, एजिंग एनालिसिस. आप यहाँ जाके अपने प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं. ये टोटल क्वांटिटी है, इसमें से कितना यूनिट्स कितने दिन पुराने हैं, ये पूरा कैलकुलेशन स्नैपशॉट में देगा और यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस में कितना मूवमेंट हो रहा है. क्या ऐसा तो ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक कैश में बेच चुके हैं, फिजिकली है नहीं, एंड स्टिल इट इज देयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. दिस टाइप ऑफ रिपोर्ट हेल्प्स यू टू मेक अ क्विक एनालिसिस ऑफ योर ऑडिट for inventories. Movement analysis you can do ledger wise also. अगर आपकी कोई बड़ी पार्टी है जिससे मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीदा जा रहा है तो आप लेजर वाइज भी एनालिसिस कर सकते हैं. लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. आई एम एंटरिंग इनटू नागपुर फूड प्रोडक्ट्स. इसने मुझे एक डिटेल बता दी कि नागपुर फूड प्रोडक्ट से मैंने ड्यूरिंग द ईयर मूंग दाल, रेड लेंटिल एंड राइस रेगुलर परचेज किया, उसको बेचा भी है राइस रेगुलर. अगर आप यहाँ जाके देखेंगे तो आपको ये ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स भी दे देगा. दिस गिव्स यू पार्टी वाइज एंड इन्वेंट्री वाइज डिटेल्स ऑफ
the transactions of sale purchases entered during the period. There are a lot of transactions, I guess that's why it's taking time. After stock analysis comes the negative stock. Negative stock is something very common and most of us have already come across. One of the problem with finding the negative, okay, this is the report. One of the problem of finding the negative stock is, अगर मैं अभी जाके टैली में देखूं, तो यहाँ पे मुझे बीट एंड राइज का नेगेटिव स्टॉक दिख रहा है. ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि क्लोजिंग में है. अब क्लोजिंग में जनरली कोई रखता नहीं है, ये ड्यूरिंग द ईयर आप परचेज के साथ एडजस्ट करके खत्म कर देते हैं. अगर कोई और आइटम ऐसा है जो बीच में कभी नेगेटिव हुआ, जैसे कि लाइक दिस, इसमें ओपनिंग पहले आपके पास 52 kgs था, फिर ड्यूरिंग द ईयर आपने 520 सेल कर दिया, विच वॉज इन द मंथ ऑफ जुलाई, और यहाँ पे आपका स्टॉक नेगेटिव हो गया, एंड फिर आपने अगले महीने उसे पॉजिटिव किया बाय हैविंग अ परचेज एंट्री, अगेन द क्लोजिंग स्टॉक इज 52. अगर इस टाइप का कोई आइटम है तो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, और अब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम एक एक के अंदर जाके देखें. The smartest way to find this is you go to display, go to exception report, and go to negative stock. Now, if you see the screen, this is showing you only that stock which is negative at the end of this period. But this screen allows, or in fact, this option is available in various different schemes, जहां पे आप इस स्क्रीन को मंथली डिवाइड कर सकते हैं. मंथली यानी बहुत सारी फ्रीक्वेंसी में कर सकते हैं. आप कोई भी स्क्रीन को टैली में इतने सारे फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर सकते हैं. आई एम डूइंग इट मंथली बिकॉज मेकिंग इट डेली मेक्स द स्क्रीन वेरी बिग एंड डिफिकल्ट टू रीड. द मोमेंट आई मेक दिस मंथली, तो अब अगर कोई मंथ एंड में भी स्टॉक नेगेटिव है तो वो आइटम भी यहाँ पर आ गया. ये आइटम यू कैन मेक इट आउट दैट इट वाज नेगेटिव फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ एंड देयर आफ्टर इट वाज मेड पॉजिटिव इन द नेक्स्ट मंथ. एंड जो पहला वाला है ये अगस्त महीने में नेगेटिव हुआ और उसके बाद में इसकी कहानी नेगेटिव की चलती है. So this exception report, if you drill down it on different frequency, you can have lot of exceptional reports recorded here. I mean, it's exceptional cases recorded here. Now, one thing which everybody must check, that is the sale purchase entries विदाउट इन्वेंट्री. अब एक और चीज जो टैली में, और ये ऑलमोस्ट हर बिजनेस में हो सकता है जो भी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है. अभी अगर आप इस इन्वेंट्री या इस कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखेंगे तो यहाँ परचेसेस है 11 करोड़ के. मैं लिख लेती हूँ ताकि बाद में ना कंपेयर करने के लिए हमारे पास ऑडिट एविडेंस रहना चाहिए. अराउंड 1100 lakhs इज माई परचेसेस. मेरा क्लोजिंग स्टॉक 126 lakhs है एंड मेरा प्रॉफिट 71 lakhs है. सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट फिगर्स एज ऑफ नाउ इन माय टैली रिपोर्ट. अब हम कुछ एंट्रीज करने वाले हैं जिस एंट्री से इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्लोजिंग स्टॉक, प्रॉफिट पे एंड परचेज पे पड़ेगा. हमें एंट्रीज इस तरीके से पास करनी है कि वो परचेज में आए लेकिन वो क्लोजिंग स्टॉक में ना आए. एक तरीका हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो है कंजम्पशन. कंजम्पशन का तरीका जनरली मैन्युफैक्चरिंग लोग यूज करते हैं. कंजम्पशन इज जनरली यूज्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स, बट ट्रेडर्स भी कम नहीं है. दे कैन ऑल्सो हैव, और फॉर देम ऑल्सो टैली हैव लॉट ऑफ डिफरेंट वेज टू डू सर्टेन स्टॉक एडजस्टमेंट्स. अभी गलती से भी हो सकता है अकाउंटेंट की, या किया भी जा सकता है. Let's see now. हम मान के चलते हैं कि गलती से हुआ है and we are watchdogs and we are just going to see and correct it. करना क्या है? I am passing just a purchase entry, only single purchase entry. ये वाउचिंग करते वक्त भी ध्यान रखना पड़ेगा. अभी मेरे परचेसेस है 1100 करोड़. अब मैं एक परचेस एंट्री पास करती हूँ 10 लाख रुपए की. नॉर्मल परचेस एंट्री होगी वो. I'm taking interstate purchases. लेकिन I'm not going to give inventory information into it. If I press enter,
तो मेरा इन्वेंट्री बॉक्स चला गया। अब अगर टैली में मैंने अकाउंट्स विद इन्वेंट्री सिलेक्ट किया, मैं परचेज एंट्री पास कर रही हूँ, तो टैली का इनबिल्ट कंट्रोल कहना चाहिए कि आपने इन्वेंट्री सिलेक्ट नहीं की है, इसीलिए हम एंट्री को प्रोसेस नहीं करेंगे। लेकिन टैली ऐसा कुछ नहीं कहता। अगर मैंने एक परचेज एंट्री पास की जिसमें इन्वेंट्री बॉक्स आया था, लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया एंटर दबा के, और उसने मुझे डायरेक्टली अमाउंट फील्ड पे ले गया, मैंने अपना इच्छा का फिगर लिख दिया वहां पे 10 लाख रुपए, एंड आई एम जस्ट पुटिंग इट इनटू कैश फॉर सिंपलिसिटी। 10 लाख रुपए मैंने पेमेंट साइड में भी लिख दिया। आई रिपीट अगेन, ये बड़ी सिंपल सी परचेज एंट्री है। यहाँ पे इंटरस्टेट परचेसेस डेबिट हुआ है एंड कैश क्रेडिट हुई है, अमाउंट इज 10 लाख। इन्वेंट्री का बॉक्स आया था, उसको हमने एंटर दबा के हटा दिया, इन्वेंट्री एंट्रीज हमने स्किप कर दी। अब अगर इसको वाउचिंग करेंगे तो ये बिल भी है, ये जीएसटी में भी दिखेगा, ये रिकनसाइल भी हो जाएगा, इसकी वाउचिंग भी हो जाएगी और ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी हो जाएगा। लेकिन इस एंट्री की वजह से पीएनएल पे क्या हुआ? नाउ इफ आई चेक माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, माय परचेसेस व्हिच वाज ओरिजिनली 1100 has now increased by 10 lakhs. My closing stock, which was at 1 crore 26 lakh, continues to be at 1 crore 26 lakhs. And my net profit, which was at 71 lakhs before this transaction, has now been reduced down to 61 lakh 34,000. टेक्निकली हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं यहाँ, हमें मालूम है कि अगर 10 लाख की परचेस एंट्री पास करते हैं और अगर उसको सेल नहीं किया गया है तो क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ गया होगा, ऐसा हमारा अजम्पशन है। टैली के साथ कुछ भी अज्यूम करना इज वेरी डेंजरस। ऐसा मान के चलना कि ऐसा ही हुआ होगा is actually not the way we should see Tally, because it is not a brainchild of any IT professional. It is developed by a businessman, that too a Marwadi businessman. So what we can see here is, if a purchase entry is passed by skipping the inventory records, then that entry will be there and will be accepted and processed, resulting into reduction in profit without affecting my closing stock. इस टाइप की एंट्रीज को ढूंढेंगे कैसे? हम एक एक परचेज बिल देख नहीं सकते, हम एक एक ट्रांजैक्शन को इतनी डिटेल में चेक नहीं कर सकते। इसको ढूंढने का बहुत इजी एंड स्मार्ट तरीका है। जस्ट अ सेकेंड। I missed out the date of transaction. This was a purchase entry that we have passed with Nagpur Food Products, I guess. All right, I'll just pass one more entry here. Nagpur Food Products. $10 lakhs. And this is VAT purchases. Sorry, this is my interstate purchases. I'm going to skip this box. This is the purchase entry from Nagpur Food Products on 31st March. Obviously, it is a second entry, so it's going to impact my P&L again. How to find this? The best and the easy ways: go to display, go to account books, go to purchase register. Once you get into purchase register, press enter. These are my transactions. I want to find the entries where my inventory records have not been given. अब इसमें common mistake क्या करते हैं कि जब मैंने ये live session लिया था hands on training में, then I asked him कि what report you should check. So everybody was moving around inventory. अगर आप इसको stock report में जाके देखेंगे तो stock report में तो ये मिलना ही नहीं है, क्योंकि stock तो हमने enter ही नहीं किया था। कुछ लोगों का जवाब ये था कि हम इस stock summary में इसको detail करके, I'm just telling you what ways people have suggested to do this.
ये जो कॉलम है विच इज कॉल्ड एज इनवर्स कॉलम, इसमें जो 12 करोड़ 50 लाख है, इसको हम रिकंसाइल करने की कोशिश करेंगे हमारे पीएनएल की परचेज से, जो कि 11 करोड़ 20 लाख है। ये रिकंसाइल करना इज गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, एंड एट द सेम टाइम ये नेट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो ग्रॉस फिगर्स है, और वन चेक करना इज गोइंग टू टेक हेल लॉट ऑफ टाइम विद नो गारंटी दैट यू विल एंड अप गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। द बेस्ट रिपोर्ट इज we have to find a report जहां पर मेरी परचेज एंट्री भी हो और इन्वेंट्री अफेक्ट नहीं भी होने के कारण वो वहां पे दिखते रहे। ऐसी जो रिपोर्ट है वो है अकाउंट बुक्स में परचेज रजिस्टर। वंस आई गेट इनटू परचेज रजिस्टर, इसे मैं डिटेल कर देती हूँ, और रेदर आई गेट इनटू मार्च। इसमें आप देख रहे हैं कि पार्टी का नाम है, परचेज टाइप है, वाउचर नंबर है, अमाउंट है, लेकिन क्वांटिटी नहीं दिख रही है। क्वांटिटी दिखेगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के बाद, जो कि आप कर सकते हैं कॉलमनर से। यहां पर एक ऑप्शन है आपके पास में, शो क्वांटिटी डिटेल, ये आप बस यस कर दें एंड कंट्रोल है। जैसे ही आप ये करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन में क्वांटिटी का कॉलम आ जाएगा। अब बस इतना सा काम करना है, इसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट कर दें एंड इस कॉलम में एक फिल्टर लगा दें कि जहां जहां भी ब्लैंक्स है, ये पहले की एंट्रीज है, जहां जहां पे भी ब्लैंक्स है, इसका मतलब इन पर्टिकुलर एंट्रीज में परचेज का वैल्यू तो बुक हुआ है लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यू बुक नहीं हुई है। You can certainly call for these vouchers, and once you correct these entries, your purchase figure will remain the same, but your closing stock will increase, which is going to have the second effect on your net profit for the year. This is a very easy way to find it. I'll repeat again, if while passing purchase and sales के लिए भी लागू होता है। जैसे परचेज की एंट्री पास करने में अगर आपने इन्वेंट्री स्किप किया तो प्रॉफिट कम होता है, उसी तरीके से अगर सेल की एंट्री पास करते वक्त अगर आपने इन्वेंट्री स्किप किया तो आपका प्रॉफिट बढ़ता है, क्योंकि प्रॉफिट और सेल बुक हो गया लेकिन इन्वेंट्री उस वैल्यू से कम नहीं हुई है। So depending upon the requirement, whether you want to increase the profit or decrease the profit, people use this type of method also. ये you can find very quickly with purchase register and sales register. Now moving ahead to different topic now, we are going to discuss on fixed asset additions. अभी तक हमने जितनी भी बात की वो इन्वेंट्री रिलेटेड टॉपिक्स पे थी। अब हम आगे बढ़ते हैं फिक्स्ड असेट से। फिक्स्ड असेट में हमें एक रिपोर्ट बनानी पड़ती है जिसमें हमें एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर दिखाते हैं। अगर कोई कंपनी में बहुत सारे एडिशंस हो रहे हो, then it becomes really a painful process to write a date and then to even check it. आपको one by one इस डेट को एंटर करने की जरूरत नहीं है। टैली में ये रिपोर्ट एट वन प्लेस मिल जाती है। अब कैसे? अगर आप देखेंगे ये मेरे फिक्स्ड असेट है, I'll just expand it to show there are only 2 additions here. अब अगर मुझे इनकी डेट चाहिए तो मेरे पास एक नॉर्मल सा जो तरीका है, मैं इसके अंदर जाऊं, इस एंट्री पे जाऊं, इसी डेट देखूं, एक्सेल में लिखूं, वापस बाहर जाऊं, फिर इसमें एंटर करूं, फिर अंदर जाके फिर इसको नोट करूं, एंड अगर ऐसे 50 आइटम हुए तो मुझे ये आइटम 50 बार करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस मैन्युअली वन बाय वन, देयर इज अ वेरी स्मार्ट रिपोर्ट इन टैली जहां पर आपको फिक्स्ड असेट्स में होने वाले सारे एडिशंस एक बार में एक जगह मिल जाएंगे। अब वो रिपोर्ट कौन सी है? That report is available under account books, group vouchers. Group vouchers में जाके आप fixed assets type कर दीजिए। Group voucher is one of the very interesting report and one of the least used report in Tally. Group voucher एक ऐसी report है जहां पर all the ledger accounts grouped under one group में जितने भी transactions हुए हैं can be seen at one place. I repeat, group vouchers is the only report in Tally where you can see all the accounting entries entered with all the ledger accounts grouped under a common group. इसके 2-3 एप्लीकेशन हम देखेंगे जिसमें से एक है फिक्स्ड असेट एडिशन। By default जब आप एक बार एंटर करेंगे, this is showing you only the month of March. You can change the period
and you can see the transactions for the year. इस केस में हमारे पास सिर्फ 2 एडिशन है, अगर 200 एडिशंस भी होंगे तो भी उसकी लिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी। अभी जो आप यहाँ देख रहे हैं वो आपको नाम दिख रहे हैं जिनसे आपने खरीदा, बट वी आर इंटरेस्टेड इनटू हमने क्या खरीदा। उसके लिए आपको सिर्फ उसकी सेटिंग चेंज करनी है, इसे डिटेल में जाके शो ऑल लेजर यस, इस तरीके से आप यहाँ देख पाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा है द सेकेंड आइटम इज मोबाइल। We can export this and we can do the required settings in Excel. We can remove the unwanted rows ताकि आपके पास सिर्फ product wise और item wise additions with date and amount एक जगह पे मिल जाए। Tally में export करने का एक बहुत interesting तरीका है। I'll just quickly invest some time into it. If I want this report directly to get exported into this folder, so I need to copy the path here. I go to export, I change the path, I give the name as fixed assets, export, it will take few seconds and this report will get exported into my folder in Tally. Interesting part ये नहीं है, interesting part इसके बाद आएगा, that is अब अगर मैं चाहूं, ये मेरी रिपोर्ट है, अब अगर हम चाहते हैं कि इसी फाइल में हमारी सारी रिपोर्ट्स बनती जाए, एंड जस्ट टू रीनेम दिस टू रिपोर्ट्स, this is my additions. We can certainly do certain formatting and not put in some time to Excel, but you can remove the unwanted rows by filter option and delete. अब मैं इस शीट को बंद कर दी। दूसरी बार अगर मैं चाहूं कि मेरी सारी रिपोर्ट्स जो है वो इसी फोल्डर में जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है। बहुत बार क्या होता है, स्पेशली आर्टिकल्स क्या करते हैं, जितनी बार टैली से रिपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं वो नई नई एक्सेल फाइल बनाते चले जाते हैं, एंड बाद में इतनी सारी एक्सेल फाइल हो जाती है कि उसमें किस फाइल से हमें क्या लेना है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन टेक द पेन्स टू चेंज द नेम ऑफ दैट एक्सेल, व्हिच मेक्स द टास्क इवन डिफिकल्ट। हमें क्या करना है, आई जस्ट मेक वन मोर रिपोर्ट। सपोज आई वांट टू नो कैश पेमेंट्स एक्सीडिंग 20,000 लिस्ट एट वन प्लेस, लेकिन जो मेरा असेसी है अगर उसके पास में मल्टीपल कैश अकाउंट्स है, मतलब पेटी कैश मेंटेन करता है, उसके 5 जगह ऑफिसेज है और हर ऑफिसेज में उसके पास में कुछ कैश बैलेंस है और वो कैश में काफी ट्रांजैक्शन करता है, सो इन दैट केस मुझे ये जो 20,000 की लिमिट है वो 5 बार लगानी पड़ेगी 5 कैश लेजर अकाउंट में। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है क्योंकि आपको 5 बार उसे एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। टैली के अंदर अगर आप ये काम स्मार्टेस्ट वे में करना चाहते हैं, then instead of going to that individual ledger accounts, you must go through the group vouchers. Group voucher में आप क्या करें, एंटर करें और यहाँ पे सिलेक्ट करें कैश इन, इसका पीरियड चेंज कर दें। अब ये रिपोर्ट क्यों चाहिए हमें, अगर इस कंपनी के पास में 50 कैश लेजर अकाउंट्स भी होंगे ना, तो भी उसके सारे ट्रांजैक्शन इस जगह पर है। This group voucher report is giving me all the accounting entries coming from all the ledger accounts which are grouped under this cash in account group in Tally. ये काम manually करना is a very painful process, लेकिन in Tally it's a ready-made report available for us. इसमें I'm giving the conditions, voucher having voucher type name containing payment. हम चाहते क्या है, हम उन पूरे वाउचर्स की लिस्ट चाहते हैं जहां पे वाउचर टाइप पेमेंट हो एंड उसका अमाउंट दैट इज लेजर अमाउंट शुड बी ग्रेटर दैन। टैली के अंदर ग्रेटर दैन इज नॉट ग्रेटर दैन, ग्रेटर दैन शुड बी रेड एज ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू। अगर मैंने यहाँ एग्जैक्टली 20,000 लिखा तो टेक्निकली एज पर नॉर्मल इंग्लिश उसने 20,000 को स्किप कर देना चाहिए, लेकिन टैली के इंग्लिश के हिसाब से उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू के हिसाब से 20,000 का भी अमाउंट आ जाए। I'm just ending this list here.
So this is within few seconds a list of all the cash payments exceeding 20,000 coming as a consolidated list from all the ledger accounts at one place. अब interesting चीज क्या है? I want that this report should also get exported to this Excel file only. यानी वो भी इसी Excel फाइल के अंदर जानी चाहिए. उसके लिए important चीज, पहले तो ये Excel फाइल बंद होनी चाहिए. दूसरा, इसका पाथ कॉपी करें. I'm going here. I'm pasting the path. और अब जब हम चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे ये भी उसी एक्सेल फाइल में जाए, तो इस एक्सपोर्ट लोकेशन में आउटपुट फाइल नेम आपको वही नाम देना है जो यहां पर है. अगर आपने वही पाथ और वही नाम दिया तो ये जो भी एक्सपोर्ट होगा ये उसी में जाके सेव होगा. कैश इन हैंड नाम रहने देते हैं, एंटर. अब आप अगर रिपोर्ट देखें, ये पहली रिपोर्ट में हमारा फिक्स्ड एसेट की डिटेल है, दूसरी रिपोर्ट में हमारी कैश की डिटेल है, एंड सो ऑन. यू कैन कीप ऑन एडिंग द टैब. इसका फायदा ये है कि आपके इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए आपके पास सिर्फ एक ही एक्सेल रिपोर्ट है, आपको कॉपी पेस्ट कर करके बार बार रिपोर्ट को कंसोलिडेट करने की जरूरत नहीं. आई रिपीट अगेन, इफ यू वांट all the reports exported from Excel to be saved in a same Excel file, you need to give the same path and the same output file name in order to get a consolidated Excel file or workbook available with you. I just close this. Now coming back again here, we have talked about addition to fixed asset. Now, ये डिपार्टमेंट वालों ने एक बार क्वेरी की थी कि कई बार ऐसा होता है, स्पेशली जब डीम्ड डिविडेंड हुआ करता था उस टाइम पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने रिलेटेड पार्टी कंसर्न्स को लोन देती लेती थी एंड दे यूज्ड टू ग्रुप इट अंडर सन्वी डेटर्स और क्रेडिटर्स. अगर मैंने किसी को लोन दिया है और मैंने उसे सन्वी डेटर में क्लब कर दिया तो उसका डेबिट बैलेंस होगा. अब डेटर का डेबिट बैलेंस होना इज समथिंग विच इज वेरी कॉमन. तो हम उसको ढूंढेंगे कैसे? अगर मेरे पास 500 डेटर्स है, I cannot go and enter into every single 500 ledger account to find such type of parties. अगर हम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं एंड टैली की अवेलेबल रिपोर्ट्स को यूज करें तो आप ऐसे लिस्ट को विद इन फ्यू मिनट्स ढूंढ सकते हैं. आई रिपीट द रिक्वायरमेंट अगेन. आई वांट टू फाइंड द लेजर अकाउंट्स in which there are financial transactions and the same has been grouped under sundry debtors. देखिए कैसे होता है. अब इस पे एक छोटा सा ट्रिक क्या लगाया. ट्रिक ये है कि एक सन्वी डेटर के साथ नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ये है कि आई सेल द गुड्स एंड आई रिसीव द पेमेंट, देन देयर इज द यूज ऑफ सेल वाउचर, देयर इज द यूज ऑफ रिसीट वाउचर, देयर मे बी जर्नल एंट्री. ये तीन जो वाउचर्स है ये कॉमनली यूज होते हैं व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद द डेटा. लेकिन there are very few exceptional cases where I am making a payment to a debtor. मुझे मेरे डेटर को पैसे देने पड़े, ऐसी सिचुएशन काफी रेयर है एंड कम है. सो वी आर गोइंग टू डू ऑडिट बाय एक्सेप्शन. मुझे केवल वो लेजर अकाउंट्स के नाम चाहिए जो कि डेटर में ग्रुप है और मैंने उसे पैसे दिए. ये कैसे हो सकता है? ये होना बहुत आसान है. अगेन वी विल बी मेकिंग यूज ऑफ ग्रुप वाउचर्स. Group voucher is something which is very important, and more you use it, the more you will be able to explore the utility of the same. हम group vouchers में already हैं शायद. हाँ, we are into group vouchers and I'm getting into sundry debtors. Enter. ये सिर्फ मार्च है. I'm changing the period to have complete year accounting entries. I repeat again, हम इस लिस्ट में से वो एंट्रीज ढूंढना चाहते हैं जहां पर हमने पेमेंट किया है. पेमेंट इज समथिंग विच इज एन एक्सेप्शन विद अ डेटर. वी विल बी डूइंग एन ऑडिट बाय एक्सेप्शन. सो आई एम पुटिंग अ रेंज फंक्शन अगेन. वाउचर हैविंग वाउचर टाइप नेम containing payments.
end of the list. Amount का कोई restriction नहीं है, so I'm just putting only one condition. Within few seconds, the entire list of around 2,000, 3,000 entries will be reduced to only payment transactions. Certainly, this can be exported to Excel. We are not doing it presently. I can just sort this amount-wise decreasing because we are not much interested into small amounts. All right, this list is giving me the payment transactions entered by any ledger account, but it's a data account and amount wise decreasing. अभी आप देखेंगे ना, ये जितने भी राउंड फिगर की एंट्रीज है, जनरली ना जो डेटा क्रेडिट के साथ ट्रांजैक्शन होता है ना, वो राउंड फिगर में कम होता है, वो थोड़ा सा ऑड फिगर में होता है, बट एनीवेज राउंड फिगर में भी हो सकता है. स्टिल वी आर गोइंग टू गेट इनटू द कॉमन वंस. ये नागपुर फूड प्रोडक्ट्स है. अगर आप चाहते हैं दूसरा नाम भी आपको दिखे, तो यू कैन डिटेल दिस, you can export this to Excel and you can anytime make a summary of it. ये अगर लिस्ट बहुत लंबी है तो आप पिवट टेबल लगा के उसकी समरी बना सकते हैं एंड उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके अपनी टॉप पार्टीज का नाम निकाल सकते हैं. इसमें आपको नागपुर फूड प्रोडक्ट्स, अमीभाव किराना, सम ब्रांच अकाउंट, ब्रांच के साथ काम चलता है, ब्रांच आपका इन आउट दोनों चलेगा, लेकिन अमीभाव किराना चेक करते हैं. यहां से आपको सिर्फ नाम मिलेगा और अमाउंट मिलेगा. अगर आपको उसके सारे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री देखनी है तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो टू इट्स लेजर अकाउंट. हम एक ट्रायल करते हैं, छोटा अकाउंट लेते हैं, अमीभाव किराना. I'll just now get into the ledger account of Ameebhav Kirana to understand what was the reason that I made a payment to my data. It may be a genuine reason, but certainly there is a high scope of financial transaction here. It's taking time. अब हम जा रहे हैं लेजर अकाउंट में. अकाउंट बुक्स, लेजर, अमीभाव किराना, ये उसके साथ एंट्रीज हुई है. अगर मैं ये खुद ढूंढने की कोशिश करती तो मुझे इस तक पहुंचने में आज के 2 घंटे के सेशन पूरा लग जाता, लेकिन क्योंकि हम उस तरीके से गए तो वी कैन ड्रिल डाउन टू दिस पर्टिकुलर लेजर अकाउंट एंड नाउ वी आर इनटू दिस लेजर टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द रीजन ऑफ मेकिंग अ पेमेंट टू अ डेटा अकाउंट. यहाँ पे आप देख रहे हैं अक्टूबर में एक रिसीट एंट्री है, देन पेमेंट है, दोनों अमाउंट सेम है. ये दिसंबर की एंट्री है, तो ये चेक रिटर्न भी नहीं हो सकता. जनरली चेक रिटर्न के केस में भी पेमेंट एंट्री दिखती है, बट वी कैन सी हियर दैट दिस इज द सेल ट्रांजैक्शन, दिस इज सेल ट्रांजैक्शन जिसके अगेंस्ट में यहाँ पैसे मिल गए, एंड ये सेल ट्रांजैक्शन. अगर ये एंट्रीज को मैं रिमूव कर दूं तो जो मेरे पास बच गया वो इस पार्टी के साथ हुआ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है. 17 लाख रुपए आए, 17 लाख रुपए गए. अलग अलग डेट्स है, इसका मतलब इन्होंने आपस में फंड यूज किया. टेक्निकली इट शुड बी एन अनसिक्योर्ड लोन टू बी रिपोर्टेड अंडर 269 SST, बट since it is grouped under sundry data, it has caved our analysis. This is one of the one more additional application of group voucher report in Tally. Just data credit analysis along with inventory. जो ये आपके स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री बुक में मूवमेंट एनालिसिस, यहाँ पे आप लेजर एनालिसिस, ग्रुप एनालिसिस भी कर सकते हैं. आप सन्वी डेटर्स की लिस्ट के हिसाब से भी प्रोडक्ट देख सकते हैं कि अगर अब मुझे बाजरा के बारे में डिटेल जानना है तो अब मुझे ये जानना है कि बाजरा की जो सेल हुई है वो किस किस को हुई है. सो हियर इज द लिस्ट ऑफ बाजरा along with the quantity sold at different rates to different parties. ये चीज की समरी अगर सेल्स रजिस्टर या P&L से बनाएंगे, इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. टैली में बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, लेकिन आई डोंट नो, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी चीजें हम अभी तक इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाए. Whenever next time we work on Tally, we must try and find what is otherwise a shortcut way of doing the same thing. The more you try and invest
time in understanding the different reports, the more effective our audit could be, with obviously far lesser time that probably we spend right now. And just getting into this, where we have purchase and sale both. This is giving you the details of purchases made for this rice regular product. It seems that Nagpur Food Products is the only party, that too on different dates, and the list of sales that we have done. We can export this to Excel to do the further analysis if required. Many people have never been to this particular section of report. ये जो inventory books का जो part है, इसके अंदर आपको stock item wise, group summary wise, movement analysis wise, age analysis wise काफी सारी चीजें मिलेगी जो inventory को relate करती है. And since we all know that inventory is one of the most important part for department also, so they are also very keen on doing various different analysis on the inventory stock of any entity. They also know how to do all these things because it is a part of their curriculum. Closing stock में एक जो सबसे worst thing which I don't like personally is integration को remove करना. I have seen so many cases in place. Nagpur is also not a very big place. यहाँ पे जब I was doing my articleship, I've seen many people do a very different type of stock valuation. वो क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे 15 लाख है, तो इसको 5 लाख से कम करना है. मतलब आप स्टॉक को 5 लाख से कम कर दो. यानी अगर मेरा स्टॉक 1 crore 20 lakhs रहा, तो वो प्रॉफिट मुझे चाहिए. अब obviously we cannot go and change every entry. So what they do is they remove the integration between your stock and inventory. इसको maintain accounts इंटीग्रेशन को रिमूव कर देते हैं. यहाँ पे आकर फिर ये स्टॉक समरी से हट जाता है और यहाँ जाके हम हमारे हिसाब से जो फिगर लिखना है वो लिख दें. This is to be 1 crore 20 lakhs. डायरेक्टली ये स्टॉक यहाँ आ जाएगा और इसका इम्पैक्ट आपके पीएनएल पे चला जाएगा. लेकिन अगर आपने ऐसा कर भी दिया तो भी आपकी स्क्रीन पे स्टॉक समरी रिपोर्ट रहती है. अब टैली में एक और फीचर है, अगर आपने ये रिपोर्ट नहीं चाहिए तो आप इसके सेटिंग में जाके मेंटेन अकाउंट्स ओनली कर देंगे, इसको यस कर दें, तो आपके जो रिपोर्ट है ये स्क्रीन से एक्सेस खत्म हो जाएगा. मतलब इट लुक्स लाइक एज इफ दिस कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग इन्वेंट्री, बट technically this company is maintaining inventory but has been hidden. ये वापस आ सकती है, इसका डेटा कहीं नहीं गया. You can anytime go and turn this to no and it is back here. फिर से वो स्टॉक समरी है, यहाँ पे 1 crore 26 lakhs ही दिख रहा है, लेकिन पीएनएल में अपने हाथ से डला फिगर है. अगर आपने इसका इंटीग्रेशन फिर से स्टैब्लिश कर दिया तो जो इन्वेंट्री वहां दिख रही है वो फिर से यहाँ लिंक हो जाएगी. अगर किसी असेसी ने इस तरीके से काम किया है या आपके क्लाइंट या किसी भी पर्सन ने इस तरीके से इन्वेंट्री मेंटेन की है और अगर आपके असेसमेंट उसके असेसमेंट करते वक्त डिपार्टमेंट ने टैली डेटा मंगवा लिया, विच नाउ दे हैव स्टार्टेड फॉलोइंग बिकॉज नाउ दे हैव स्टार्टेड लर्निंग द सेम, तो उस केस में entire thing will become black and white once they turn back all the integration into tally again. So if anybody is at all doing this type of methods or adopting this type of techniques to manipulate their profits, then I guess as a chartered accountant, it's our responsibility to bring them back on track. There are better ways and it's just a year's matter that we need to do some adjustments to put that particular thing in place again. Once everything is correctly linked, then it's a peace of mind, not only just for the assessee, I mean client, but also for the chartered accountant and the department. So this is how the inventory plays a very important role in our audit, especially if the data is in tally. इतने सारे जो तरीके हैं चीजों को इधर उधर से लिंक करने के, इधर उधर से इंटीग्रेशन देने के, इधर
बार बार उसे चेंज करने की पॉसिबिलिटीज एंड ये सब चीजें आई गेस ये बड़े सॉफ्टवेयर में नहीं रहती, और ये ना आईटी वाले इतना शायद सोच भी नहीं पाएंगे। ये सारा काम सोचने का एक बिजनेसमैन का होता है, क्योंकि वो इस प्रैक्टिकली इन सब चीजों से गुजरता है एंड उसको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें सॉफ्टवेयर में कर देनी चाहिए। This is one of the very big reason why small and medium sized people still prefer Tally as against many other cloud softwares. This was about the Tally thing. There is still always a lot to learn about it, and I'm still learning. If anybody of you have come across with any type of things which is little unusual, it will be my pleasure if we get connected through mail or through any other mode, so that we keep on exploring this software for the benefit of our profession and our fellow members. This is my mobile number. Sorry, this is my mail ID. We can definitely get in touch through mail. I even have a YouTube channel where I keep on posting videos related to Tally whenever I come across something unusual and some smart tricks. If anybody is new to Tally, they can certainly visit there. It is by the name Clear Concepts, and this is my contact number. If you have any suggestions which can help me to improve my knowledge for Tally and which can add more value addition to my students also, then it will be my pleasure if you can connect with me. Har sir or Gaurav sir, if you're there, we can open the chat for queries. I guess it is what I just wanted to share through this webinar, mostly with inventory and group vouchers. Now, if you have any doubts, queries, and if you think that I can be of some use for solving the same, then certainly we can take this opportunity to discuss on it. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Hello. Yes. Any member who wants to ask any question, he can raise by pushing that hand raise button on your screen. So will I be able to see it, or you are going to read it out? Yeah, you are going. You are able to see any raise hand from any of members. I think no query has been raised till yet. So what we can do is, if any query raised by any member, then we can share with you from your mail ID. Certainly, sir, certainly. This is my contact details. Anybody, anytime you feel that I can be of any help to you, please feel free to contact. We can certainly get in touch through any of these modes what you feel comfortable. Thank you so much, Amritaji, for such a wonderful practical session. I'm thankful to you for sparing your precious time for us on such important topic. And for our audience, as being the first virtual CP program of our branch, there may be some technical glitches related to webinar. Like my video is also not visible right now. So there may be some glitches. So I request to all members present in this meeting to please send us your feedback and suggestion on secretary_indoor@ici.org, or you can share on my WhatsApp number 7566553300. So thank you once again, Amritaji. Thank you so much. Thank you so much, sir, for giving this opportunity. I just hope that I did justice with the valuable times of so many members who attended the session live. Thanks for inviting me. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.